start with a prayer. हम प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, come into your presence, Lord. हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, प्रभु, we all gathered here, Lord. हम जो सब यहाँ पर जमा इकट्ठा हुए हैं, Profess to be Christians, my Lord. हम कहते हैं कि हम मसीह हैं। Lord, प्रभु, as I dwell on your word today, Lord. जैसे हम आपके वचन पर ये करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, let your people know, Lord, आपके लोग आपको जाने that Christianity कि मसीहत is not an easy religion, Lord. मसीहत जो है वो एक आसान धर्म नहीं है। It's not a spineless religion, Lord. वो ऐसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कोई ऐसे धर्म नहीं है। Lord, प्रभु, may this time glorify you and you alone, Lord. ये समय जो है वो आपको और सिर्फ आपको महिमा मिले। I make this prayer in the name of my Lord and Savior. हम यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। Praise the Lord, church. प्रभु की स्तुति हो। Today we will go into 2 Corinthians chapter number 4, आज हम दूसरे कोरिन्थियों के अध्याय में जाते हैं। and we will focus on the last 2 verses of this chapter. 4 का जो अंत के जो अध्याय है, अंत के वचन है, वहाँ पर हम जाकर But देखेंगे। just to give you a context, we will read from verses 8 to 18. जब आपको ऐसे समझाने के लिए हम 8 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। So I'll read one verse in English, then you pray. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. हम कष्टों में घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। Persecuted, but not forsaken. हम पर अत्याचार होते हैं, लेकिन हम कभी अपर्याप्त नहीं होते हैं। Cast down, but not destroyed. हमें पछाड़ दिया जाता है, लेकिन हमारा नाश नहीं होता है। Always bearing about in the body the dying of our Lord Jesus, हम हमारे शरीर में हर समय जो है यीशु मसीह के दुख भोग उठाए रहते हैं, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. जिससे यीशु मसीह का जीवन जो है हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो। For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, हम जो जीवित रहे हैं, हम यीशु मसीह के कारण ही नियंत्रित मृत्यु का सामना करते रहते हैं, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. जिससे मसीह का जीवन जो है वो हमारे निश्वास शरीर में प्रत्यक्ष रहे। So then death worketh in us, but life in you. हम प्रकाश We have the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. हमने जो विश्वास किया है, इसलिए हम बोलते हैं। हम विश्वास के उसी मन भाव के प्रेरित हैं, Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you. हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमें भी पुनर्जीवित कर देगा। For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद करते रहे। For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. इसी कारण हम हिम्मत नहीं हारते हैं। हमारे शरीर की शक्ति जो है वह बल के क्षणिक होती रहती है, किंतु हमारे अप्रियत जीवन प्रतिदिन जो है न्याय के लिए संचार करते रहती है। For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far exceeding and eternal weight of glory. क्योंकि हमारी क्षण भर की हालात मजबूतियाँ हमारे लिए हमेशा के लिए मसीह देती है। While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. इसलिए हमारी आंखें दृष्टि पर रहती है, दृश्य पर रहती है, बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वह अकल्पनीय है। Okay.
So in the last two verses of this chapter, ये जो अध्याय के जो अंत के दो वाक्य हैं, the Apostle Paul brings to a grand climax the series of all the astonishing and amazing things that he's been saying in the starting of the chapter. अध्याय के जो शुरुआत में जो पौलुस कह रहा है उसका पूरा सारांश जो है वो ये अंत के दो वाक्य में लिखा गया है। And these two verses are one of the greatest statements in scripture. और ये जो अंत के जो दो वाक्य है वो शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। And you will find nuggets of these verses in all of Paul's epistles. Here and there you will find these nuggets. पौलुस ने जो पत्रियां लिखी है थोड़ी थोड़ी बातें इन दो वाक्यों में से सारे पत्रियों में लिखी गई है। Now the reason why I say that this chapter number 4 is amazing and it's grand and it's lovely is that people try to focus more on the beauty of the line, the style, the cadence, the tilt, but no. जिस तरीके से ये चौथा अध्याय लिखा गया है, लोग तो उससे कैसे लिखा गया है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लोग इन सारी बातों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। I say this to issue a warning. हम आपको चेतावनी दे रहे हैं ये बात बताकर। Let us focus on the message. इसका जो अर्थ है या उसका देखेंगे क्या है। Why? ऐसा क्यों? Why should we not focus on the beauty of these passages? ये अध्याय कैसे लिखा गया है वो उस पर ध्यान क्यों न दें? Because Paul writes this in the prison. क्योंकि पौलुस जो है ये बंदीगृह में बैठकर लिख रहा है। This is not for people who like poetry. वो जिसे ऐसे कविताएं पसंद है ये उन लोगों के लिए नहीं है ये अध्याय। Okay? So we need to and focus on the message of these passages. इसका अर्थ क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। And the reason why I take these two passages, और हम ये दो वचन क्यों ले रहे हैं? because we need men and women to speak like how Paul spoke. क्योंकि हमें चाहिए कि महिलाएं और पुरुष ऐसे रहे कि पौलुस की तरह बात करें। Let us read verse number 17 again. 17वां वचन फिर से पढ़ते हैं। For a light affliction which is but for a moment, worketh for us a far exceeding and eternal weight of glory. क्षण भर के लिए जो हमारे पास मुसीबतें रहेगी वो बाकी हमारी महिमा मिलेगी उसकी वजह से। Now I want to tell you that I didn't come up with the study of this scripture in one night. So my reference is from a preacher who preached in the Second World War. ये हमने ऐसे रात पर इसे पढ़कर ऐसे एक दिन में हमें ये इसका ज्ञान नहीं मिला है। हमने एक ऐसे प्रचारक को सुना जो दूसरे महाविश्व युद्ध में प्रचार कर रहे थे। And even during that time the world was modern. उस समय भी जो संसार जो था वो बहुत ही आधुनिक था। There was wars at that time. उस समय भी युद्ध चल रहे थे। Same as now. जैसे अभी चल रहा है। There are wars. अभी भी युद्ध है। The world is full of evil. अभी जो है संसार पूरे दुष्ट कामों से भरा हुआ है। In this time of evil, ये जो समय है जहाँ पे ऐसे दुष्ट काम भरे हुए हैं, do we speak like Paul? क्या हम पौलुस की तरह बातें करते हैं? So in these two verses, ये जो दो वचन हैं, we have the acid test of our profession of the Christian faith. हम जो कहते हैं कि हम मसीह है, क्या हम ऐसे सच हमारी परीक्षा हो रही है इन दो वचनों में? और let us imagine there are three individuals. ऐसे कल्पना करते हैं कि तीन व्यक्ति हैं। I put the question, हम उनके सामने ये सवाल डालते हैं। what is the acid test of any man's profession of the Christian faith? अगर कोई कहता है कि वो मसीह है तो उसकी परीक्षा कैसे होगी? कैसे जान सकते हैं? So there's one person who comes up to me, that's very simple. वो एक व्यक्ति जो आके कहता है ये तो बहुत ही आसान बात है। If a man doesn't believe in the deity of the Lord Jesus Christ, अगर कोई यीशु मसीह का जो दिव्य चीज पर विश्वास नहीं करता है, his incarnation, जो वो मानव बन के आया है, his atoning death, वो यीशु मसीह की जो मृत्यु है, his physical resurrection, यीशु मसीह का जो पुनर्जीवित हुआ है, his ascension, उसको स्वर्ग में उठाए ले the गए, person of the Spirit, यीशु मसीह की जो आत्मा है he can't be a Christian. वो मसीह नहीं कहला सकता अपने आप को। What do we say to that? हम इस चीज को क्या कह सकते हैं अभी? This test is known as the test of orthodoxy. ये ऐसे कहते हैं कि वो काल्पनिक चीजें या तो पुरानी चीजों के बारे Because में। we know there are many people who assert intellectually. बहुत लोग ऐसे जो अपने मन के द्वारा सोचते हैं। They proclaim many things on Sunday. वो इतवार के दिन आकर बहुत सारी चीजें ऐसे But on the करते हैं। weekdays, लेकिन दूसरे दिन, बाकी के दूसरे दिन, what they proclaim on Sundays जो वो इतवार के दिन ऐसे प्रचार करते fails on हैं, these weekdays. जो बाकी के दिनों में वो सब भूल जाते हैं ये सारी So we बातें। see इसलिए हम देखते हैं that orthodoxy ये जो पुरानी बातें हैं, is not the right way to test. ये ऐसे किसी की परीक्षा नहीं हो सकती है इसके द्वारा। It's not the test to know that a person's faith is genuine or no.
इसके द्वारा हम नहीं जान सकते कि कोई सच में विश्वासी है या While नहीं। it's important, लेकिन ये बहुत ही it is महत्वपूर्ण भी है। important to believe on the resurrection, it is important to believe on the ascension, it is important to believe on the life of Christ, it is important. यीशु मसीह के जीवन पर, उनके पुनरुत्थान पर, उनको स्वर्ग में ले जाए पर, ये सारी बातों पर विश्वास करना बहुत ही But जरूरी we see है। that alone is not sufficient. लेकिन ये खुद से ही ऐसे बस पूरा नहीं है। Now we come, there's another person. अभी दूसरे व्यक्ति के पास आते He हैं। says, I have a test. वो कहता है मेरे पास एक परीक्षा है। He says the test of conduct and morality. जैसे तुम अपना रोजमर्रा के जीवन जीते हो और तुम्हारी नैतिकता। वो बोलता है आदमी कुछ भी बात कर सकता है, उसका जो his conduct and his morality, that determines whether his faith is genuine or no. वो जैसे अपनी रोजमर्रा के जीवन बिताता है और उसकी नैतिकता देखकर पता चलता है कि वो मसीह है या नहीं। But I want to tell you, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, there are millions and there are many who do good works, बहुत सारे लोग भरे पड़े इस संसार में जो अच्छे काम करते but they are हैं, not Christians. लेकिन वो मसीह तो नहीं है। You cannot point a finger on their character, उनके चरित्र पर आप कोई उंगली नहीं उठा but they सकते are हो, not Christians लेकिन वो मसीह नहीं है, because they deny the faith of God. क्योंकि वो प्रभु का जो विश्वास है उसे ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। So we see that morality alone, इसलिए हम कहते हैं कि नैतिक जीवन जो है if it is not supported by faith, वो विश्वास से अगर उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, cannot determine whether a person's faith is genuine or no. उसका विश्वास के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। Then comes another person. फिर आता है तीसरा व्यक्ति। ये जो पहले तूने आइडिया दिया वो तो मैं कभी नहीं देता था, मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ, द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस. अनुभव आपके। He says that, you know, unless a person has not undergone this particular test on December 4th of this year, he's seen something in the cloud, and once he's seen something in the cloud, it was the sun, moon and stars, and this led him to believe, or this led to his conversion. किसी व्यक्ति ने ऐसे स्वर्ग आसमान में देखा कि तारे हैं, चंद्रमा है, ये सारी बातें हैं, और वो देखकर उसका विश्वास उसमें विश्वास आ गया। ऐसे भी बहुत पास्टर है जो बोलते हैं मैंने शकाइना ग्लोरी देखा है मेरे गिटार पे। वो बोलते हैं कि मैंने मेरे मीटिंग के वो बाजू मैंने 4 एंजल देखे। आई वॉन्ट टू से हाउ इज इट पॉसिबल? हम पूछना चाहते हैं ये कैसा संभव है? Only the pastor of the church is able to see angels. सिर्फ आसमान देख सकता है स्वर्गदूतों को। The people of the church cannot see those angels. कलीसिया के जो लोग हैं वो नहीं देख सकेंगे। I tell you, you preach the gospel to these people. हम आपसे कह रहे हैं इन लोगों को सुसमाचार का प्रचार They करो। will run away. वो भाग जाएंगे। Because their gospel is experience. क्योंकि उनका जो सुसमाचार है वो अनुभव का सुसमाचार They है। say on this particular day of this month, I seen a cloud and that cloud spoke something to me, so I got converted. Then my wife got converted and then my brothers got converted and all have come into the church now. वो ऐसे कहते हैं कि किसी एक दिन हमने स्वर्ग में एक बादल देखा, वो बादल ने हमसे बातें की, मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, हम सब अभी विश्वासी बन गए। Brothers and sisters, this is not the true faith. भाई और बहनों, ये सच्चा विश्वास नहीं है। और जो ये कहते हैं वो अंधकार में है अभी, क्योंकि वो गॉस्पेल पढ़ाने कभी आगे नहीं आएंगे। उनको तुम बोलो तुमने क्या देखा वो दिन पे, वो बोलने आगे आएंगे ये लोग, लेकिन गॉस्पेल बोलने के लिए ये लोग आगे कभी नहीं आएंगे। एंड वी विल सी द टेस्ट ऑफ दिस पीपल। हम इन लोगों की परीक्षा जरूर देखेंगे। ओके, सो वी सी दैट, एंड आई वांट टू से दैट इफ एक्सपीरियंस इज व्हाट डिटरमाइंस अ पर्सनस फेथ इज जेन्युइन और नो, देन व्हाट डू यू से अबाउट दीस कल्ट्स? अगर आप ऐसे सोचते हो कि अनुभवों के द्वारा देख सकते हैं कि कोई विश्वासी है या नहीं, तो ये बाकी के टुकड़ी जो हो गए हैं बाहर, उसका क्या? हैव यू हर्ड ऑफ क्रिश्चियन साइंस? क्रिश्चियन साइंस के बारे में आपने सुना है? Has anybody heard of Christian Science? You know, there was a woman, she slipped on ice and she went critical. एक महिला जो है वो बर्फ पे फिसलकर गिर गई और उस बहुत ही गंभीर हालत में थी। And then she asked that give me a Bible. उसने कहा कि मुझे एक बाइबल दो, And she got cured. और वो ठीक हो गई, चंगी हो गई। And this is how her gospel started. और उसी द्वारा उसका जो सुसमाचार है वहाँ से शुरू हुआ। The gospel of experience. अनुभवों का सुसमाचार। So we see हम देखते हैं all these 3 individuals who gave the idea of the test ये जो 3 व्यक्तियों ने आपको अपनी परीक्षा जैसे लेनी है लोगों की, are not according to this word. वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। Okay? So let's read verse number 17 again. 17वां वचन फिर से पढ़ते हैं। For a light affliction, हल्की सी मुसीबतें, which is but for a moment, worketh for us a far exceeding and eternal weight of glory.
So we see यहाँ पे हम देखते हैं that this verse ये जो वचन है, covers all the three acid tests that the first three individuals said. ये जो पहले व्यक्ति ने जो कुछ भी बातें बोली है वो सारे इनमें हैं। Yes, the test is of affliction. हाँ, ये जो परीक्षा होगी वो तुम्हारे ऊपर जो ताड़ना होगी, कठिनाई आएंगी, उसके बारे में है। People want a Christianity without affliction. लोगों को ऐसी मसीहा चाहिए जिसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं They हो, don't want to be afflicted. उन पर कोई हानि Don't नहीं want to आनी be चाहिए, afflicted. No, they don't want to be afflicted. उनको अपने जीवन पर कोई हानि नहीं They चाहिए, don't want to be afflicted for this God. उनको अपने जीवन पर कोई हानि या कोई कठिनाइयाँ नहीं चाहिए प्रभु This के is where लिए। your faith comes to the test. यहाँ पर ही जो है आपका विश्वास की परीक्षा होती है। The faith of affliction. ये जो विश्वास है, ये जो परीक्षा के द्वारा होती है। Are you ready? Now, even afflictions, there are two types of afflictions, okay? और परीक्षाएं जो होती है कष्टों के द्वारा, वो दो प्रकार के होते हैं। The afflictions that you take up for Christ, जो आप मसीह के लिए लेते हैं पहली, and the afflictions that God has allotted to every believer. दूसरा जो है वो प्रभु ने खुद लोगों के ऊपर डाली है वो। Okay, so I'll speak first on the affliction that we have to take up for Christ. अभी पहले हम बात करते हैं जो हमने कठिनाइयाँ उठानी है मसीह के लिए। Let's go to since Paul is talking to the righteous because he's talking to the church here, right? पौलुस जो है वो धर्मियों से और कलीसिया से बात कर रहा है यहाँ पर। So let's take a psalm about the righteous. अभी एक भजन संहिता लेते हैं। What does it say about the afflictions of the righteous? धर्मियों के ऊपर जो कठिनाइयाँ आएंगी उसके बारे में रहेगा। भजन संहिता 34। Many are the afflictions of the righteous. बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। What? Many are the afflictions of the righteous. Please don't think that you come to Sunday here, there is no difference between us and the people who go to other churches and the Catholic churches if you don't have any afflictions in your life. अगर आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं है और तुम में और बाहर के मसीह लोगों में कोई फर्क नहीं है जो दूसरे कलीसिया में जाते हैं। A Christian is marked by afflictions. एक क्रिस्ती का जो है वो नियंत्रण, जो उसका ऊपर जो चिन्ह है वो उसका कठिनाइयाँ हैं। Today our sister prayed that how do we handle our relatives? अभी एक बहन ने ऐसे प्रार्थना की कि हम अपने रिश्तेदारों को कैसे सामना We करें। have to love them. हमें उनसे प्यार करना चाहिए। But when it comes to this word, लेकिन जब हम वचन के पास आते हैं no discussion. तब कुछ नहीं, हम कुछ नहीं मानेंगे। There are no two thoughts about what the word says, don't do. इस वचन जो कहता है मत कर, वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। If the word says you cannot yoke yourself, means you cannot yoke yourself. अब किसी और के साथ ऐसे संगति नहीं कर सकते हो या उनके साथ नहीं जुड़ सकते हो तो तुम नहीं जुड़ सकते। Now do you want a Wednesday meeting for that? When the word is clear that you cannot yoke yourselves. अभी उसके लिए आपको एक वेडनेसडे के दिन पे आपको एक प्रचार चाहिए यहाँ पर उस बात के लिए। My daughter, you cannot go to that party. मेरी बेटी तुम उस पार्टी में नहीं जा सकते हो। My son, you cannot go to that party. मेरे बेटे तुम उस पार्टी में नहीं जा सकते हो। My son, you cannot be around people who talk about money. मेरे बेटे तुम उन लोगों के इर्द गिर्द नहीं रह सकते जो पैसे के बारे में बात करते Why? हैं। Why क्यों? mama? Why dada? Why? क्यों माँ, क्यों पिता? Because the influence of the world is deadly. क्योंकि जो संसार का जो तुम पर नियंत्रण रहेगा वो बहुत ही खतरनाक है। Okay, so I won't go into I won't go verse by verse in the book of Psalms, but you can read who are the righteous. हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि धर्मी लोग कौन हैं। The righteous, I'll just give you a brief that the righteous are marked by humility. धर्मी जो है वो बहुत ही दिव्य दैनिक रहेंगे, दैनिक रहेंगे। They are marked by the fear of the Lord. उन पर प्रभु का जो भय है वो उनमें रहेगा। And they are people who are crushed. उनको कुचल दिया जाएगा। They have a humble and a contrite spirit. उनका जो आत्मा है वो बहुत ही दीन रहेगा। Now I want to tell you one thing. अभी हम आपसे कहना चाहते हैं, The righteous do these things. धर्मी जो ये सारी बातें करते And हैं, what they are promised? उनको क्या प्रॉमिस मिलता है? What are they promised? उनको क्या मिलता है? Afflictions. और कठिनाइयाँ। It's not earthly ease, my brothers and sisters. It is not earthly ease. संसार में तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत ही खुशमय होगा, ये नहीं है। Now another thing I want to fire out at you. एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं। You see, you read this word, you read the Psalms, you will see that it says that taste and see that the Lord is good. When? अब चक्कर देखो कि प्रभु भला है। When do you taste and see that the Lord is good? कब तुम चक्कर देखते हो कि प्रभु भला है? महिमा आपकी कभी होगी? यीशु तुम हमारे साथ कभी होगा? जब तुम तार लोगे?
जब तुम गाड़ी लोगे, जब तुम नया घर लोगे, कब होगा यीशु? जब तुम हमारे साथ हो कभी गाएंगे, महिमा हो तुम्हारी हम कभी गाएंगे। जब हम नया घर लेंगे, जब हम नई गाड़ी लेंगे, जब हम बड़े डकेरे मारेंगे कि हमने ये लिया, हमने वो लिया, हमारा ये है, हमारा वो है, तभी तुम गाओगे? कि कभी तुम गाओगे जब उन्होंने बोला तुम इधर नहीं आ सकते हो, तुम यीशु मसीह में मानते हो, तुम्हारा इधर कुछ नहीं है, तुम निकलो यहाँ से? कभी महिमा कभी होगी? When godly people are afflicted for these reasons, जब धर्मी लोगों का then जो my brothers कठिनाई and आएगी, sisters, trust me, you will taste and see that the Lord is good. हमारा विश्वास करो कि तब आप जानोगे कि प्रभु भला है। Now I want to say, अभी हम आपसे कहना चाहते हैं, when did Paul sing? पौलुस ने कब गीत गाए? When did Paul sing? पौलुस ने कब गीत गाए? He sang in the prison. वो बंदी गृह में था तब गीत गाता था। And when people are afflicted for this reason, और जब लोगों के ऊपर कठिनाइयां आती हैं, then comes the champion verse. फिर आता है वो वचन Romans 8:28. रोमी का 8:28। All things work together. सारी चीजें जो है वो एकत्रित होती All है। things work together who love this God. जो ये प्रभु पे प्रेम करते हैं उनके लिए। Okay? So now we spoke about people who face afflictions for the Lord. अभी हमने ये बात इन लोगों के बारे में देखा जो लोग कठिनाइयां उठाते हैं प्रभु के लिए। Now we go to the afflictions that the Lord has allotted to every अभी believer. हम देखते हैं कठिनाइयां जो प्रभु डालता है हर एक विश्वासी के ऊपर। You see that there is afflictions all around us. कठिनाइयां जो है या परीक्षाएं जो है वो सब हमारे इर्द गिर्द है। Just because तुम मसीह हो तो तुम्हारा अफ्लिक्शन अलग होगा और जो बाहर है उसका अफ्लिक्शन अलग होगा, ऐसा है? तुम्हारे घर में मृत्यु नहीं होगा, उनके घर में मृत्यु होगा, ऐसा है? क्या ये हकीकत है? नहीं। Our afflictions don't change, हमारी जो परीक्षाएं है वो बदलती नहीं है, but how we respond to these afflictions. लेकिन ये जो परीक्षाएं कठिनाइयां आती है उसका हम कैसे उत्तर देते हैं। Now I want to tell you अभी हम आपसे कहना चाहते that हैं, since I'm speaking of the righteous, अभी हम धर्मी लोगों के बारे में बात कर रहे I हैं, also want to tell you about the unrighteous. अभी अधर्मी लोगों के बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं। You see, there's a different way that the righteous responds to an affliction, जो धर्मी है वो कैसे उत्तर देता है इन सारी कठिनाइयों का या परीक्षाओं का, and the wicked, और जो दुष्ट है वो, how they respond to the same affliction. और जब दुष्ट पे ये सारी चीजें आती है तो वो कैसे उत्तर देता है ये भी हम देखेंगे। Okay, now let's read verse number 17 again. दूसरा कोरिन्थियों में 2 Corinthians. दूसरा कोरिन्थियों 4:17। For our light affliction. हल्की सी मुसीबतें। You see? Can you tell me, was Paul's affliction light? पौलुस पे जो कठिनाइयां आ रही थी क्या वो हल्की सी थी? Can you compare your afflictions to Paul's afflictions? क्या आपकी जो कठिनाइयां मुसीबत है क्या आप उसकी तुलना पौलुस के साथ कर सकते हो? You say I have an abusive husband. कोई ऐसा कह सकता है कि मेरा पति मुझे बहुत ही पीड़ा देता है। Months after months he torments me. महीनों दर महीना वो मुझे परेशान करता है। How long? और कितना समय? I have a worldly son. अब मेरे पास जो एक ऐसा सांसारिक बेटा है, He doesn't love me. वो मुझसे प्यार नहीं करता है। How long? और कितना समय? My daughter is worldly. मेरी बेटी जो है वो सांसारिक है। She doesn't care about Christ. वो मसीह के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करती She है। only wants me for money. वो सिर्फ मुझे चाहती है क्योंकि मैं उसे पैसे देता हूँ। How does a godly person react to such things? एक जो प्रभु का जो व्यक्ति है वो कैसे इन चीजों का उत्तर First of all, देगा? he will go and pray. पहली बात तो है वो जाकर प्रार्थना करेगा वहाँ पर। और वो ये बोलेगा, what he will say? He will say, our light affliction. हमारी हल्की सी मुसीबतें। Now why are these afflictions light? हमारी मुसीबतें हल्की सी क्यों है? Let us compare. आइए तुलना करते हैं। Who shall we compare our afflictions to? अपनी मुसीबतों का तुलना हम किससे Glory to करें? God. Are your afflictions anything compared to the Lord Jesus Christ? क्या आपकी मुसीबतें जो है वो यीशु मसीह के साथ तुलना कर सकते हो? For everything that he underwent for you, यीशु मसीह ने जो कुछ भी ताड़ना सही, जो कुछ भी मुसीबतें सही आपके लिए, can you compare those things? क्या आप उसकी तुलना कर सकते हो अपनी चीजों You के cannot. साथ? नहीं। But there's a human side to us, right? लेकिन हमारे पास एक मानव साइड भी है। We feel. I feel when there's an abusive husband. I feel it's not easy. Please don't think that it's easy to rant over here. It's not easy. हमें पता है जब एक पति अपने पत्नी को ताड़ना देता है कैसा है वो हम जानते हैं। But how long? 1 day, 2 day, 10 years?
20 years, एक 30 दिन, 2 years. दिन, कितने वर्ष, How long? कितना समय? Glory to God. Let us learn from Paul. प्रभु को महिमा मिले, हम पौलुस से सीखते हैं। He says our light afflictions are for a moment. बस क्षण भर के लिए है। How are they for a moment? ऐसे कैसे कि वो क्षण भर के लिए है? Because Paul puts eternity in perspective. क्योंकि पौलुस जो है वो अनंत काल का जीवन देखता है। Brothers and sisters, भाई और बहनों, put your afflictions with eternity in perspective. आप पे जो कठिनाइयाँ आ रही है वो उसके सामने आप अनंत काल का जीवन देखो। In the day of your afflictions, your deep truths will not help you. जो आपके ऊपर कठिनाइयाँ आएगी, जो सत्य है वो आपको नहीं बचा पाएगा। We need to respond like Paul. हमने पौलुस की तरह उसका सामना करना चाहिए। We have to look at it from eternity's point of view. हमने उसे अनंत काल का जीवन ध्यान में रखते हुए उसका सामना करना चाहिए। And I'll tell you one thing, okay? अब आपसे एक और चीज़ कहना Now I'm talking about persecution, but there is a prevailing class in the church. लेकिन कलीसिया में एक प्रकार के ऐसे भी लोग हैं The rich class. जो अमीर है, They don't want persecutions. उनको अपने ऊपर कठिनाइयाँ नहीं This is चाहिए। a warning to them. ये उनके लिए चेतावनी है The Lord will judge you. कि खुदा जो है आपका न्याय जरूर You करेगा। can't put your feet here and you can't put your feet there. आप एक पैर यहाँ पर एक पैर बाहर ऐसे नहीं डाल सकते You हो। can't come to Sunday and allow things in your house. आप संडे के दिन पे कलीसिया में आकर अपने घर में बाकी चीजें नहीं So छोड़ be सकते aware, be aware. We have warned you. It is my duty to warn you because Paul warns. हम आपको चेतावनी देते हैं क्योंकि पौलुस खुद चेतावनी देता था। Okay? Now I'll take an example since I spoke of the righteous and the unrighteous. Okay? अभी हम एक उदाहरण लेते हैं धार्मिक और अधार्मिक लोगों के बारे So, में। for example, there was a woman. मान लो एक ऐसी महिला है, Her husband died. उसका पति मर गया। Now, the righteous woman, धर्मी she was singing at her husband's funeral. वो अपने पति के मृत्यु पर गीत गा रही थी। Whereas the wicked woman जैसे कि वो दूसरी जो or the unbeliever, जो नहीं मानने वाली जो she महिला was है, crying and sobbing and sobbing and crying and crying. वो बहुत रो रही थी। What's the difference? अभी इन दोनों महिलाओं में क्या अंतर है? The difference is that the heart of the wicked woman has a will that is biased to evil. एक महिला जो है वो दुष्ट महिला जो है वो उसके दिल में सारी दुष्ट चीजें ही है। She's under the dominance of the flesh. वो अपने शरीर की लालसाओं के ऊपर है, उसके ऊपर तो चल रही उसके लिए है। क्या मंडे एक चीज, अरे अभी ट्यूसडे और एक दूसरा चीज, वेडनेसडे दूसरा चीज, थर्सडे दूसरा चीज, ये ट्रायल्स आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, and she is crushed. Whereas the woman who has received the love of Christ, बल्कि वो दूसरी महिला जिसने प्रभु का प्यार she पाया will है, sing. वो गीत गाएगी। Why? क्यों? Because she knows क्योंकि वो जानती है that her heavenly Father's hand is there in everything that is purposed for her. क्योंकि स्वर्गीय पिता का हाथ जो है वो उस पर है, She is not alone. वो अकेली नहीं है। In your afflictions, you are not alone. आपकी जो कठिनाइयों में आप अकेले नहीं हो, Your heavenly Father is with you. आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है। You need not need a man. You believe this? आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। So, brothers and sisters, इसलिए भाई और this बहनों, is the difference. ये वो अंतर है। You see that Paul's afflictions didn't change. पौलुस की जो कठिनाइयां हैं वो नहीं बदली। Initially, it was difficult for Paul. He was hard pressed. पहले के समय में भी पौलुस पर ऐसे कठिनाई आई तो वो But बहुत later दुखी on, he हुआ। understood लेकिन बाद में वो ये बात समझा to see things in eternity's perspective. कि वो उसने अनंत काल का जीवन अपने ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों का सामना करना है। And why should we see things in eternity's perspective? What is it about our life? हमने अनंत काल का जीवन ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें क्यों झेलनी Our चाहिए? life is just a vapor. हमारा जीवन जो है वैसे हवा के जैसे है, It's here and gone tomorrow. अभी है और कल नहीं है। This is what James tells us. ये हमें याकूब की पत्री में कहता है। Let's read from Ephesians 2, chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 6. इफिसियों 2:26। दो का 6। You see? Read. उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बिठाया है। You see that Christians are seated in heavenly places. हम देखते हैं कि मसीह जो है वो स्वर्ग के स्थानों में बैठे हुए हैं। A Christian एक मसीह जो है belongs to eternity. वो अनंत काल का जीवन रहता है उसका। He is not under the tyranny of time. उसके ऊपर समय का जो कोई प्रभाव नहीं है। Not 1 year, 2 days, 2 years, 3 years, 4 years, 6 years, but have eternity in perspective. लेकिन उसके दिमाग में जो है वो अनंत काल का जीवन है। For your affliction is light. क्योंकि तुम्हारा जो कठिनाइयां है, मुसीबतें, वो हल्की सी है। And what happens when we see all people around us prospering?
जब हम हमारे इर्द गिर्द जो देखते हैं लोग अरे बहुत ही समृद्धि हो रहे हैं। अरे हर महीना कुछ लेता है यार, वो हर महीना कुछ खरीदता है, हर एक कुछ ना कुछ उससे रहता ही है, कुछ तो खरीदी करता ही है, कुछ खरीदता है, कुछ बेचता है, कुछ ना कुछ तो करता ही है, और सब सेट है वो बंदे का, कुछ नहीं उसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है ये बंदे का। When people are facing afflictions, how do they respond to such situations? जब लोग उनके ऊपर कठिनाई आती है और ये सारी चीजें देखते हैं दूसरों के बारे में, तो वो क्या सोचते हैं? It is for a moment. वो सिर्फ क्षण भर के लिए है। Just read what Paul says. पौलुस देखो क्या कहता है, The things that we see are temporal. जो हम चीजें देखती है वो क्षण भर के लिए है। The things that you see others enjoying. आप देखते हैं कि दूसरे मौज मस्ती कर रहे हैं, The things that are seen, जो आप चीजें देखते हो they are temporal. वो क्षण भर के लिए है। Okay? So what Paul does in this verse number 17, पौलुस क्या करता है जो 17वें वचन में, he manages to put our afflictions वो ऐसे करता है कि हमारी जो कठिनाइयां हैं on a weighing scale. एक तराजू पर रखता है। On one side, एक तराजू के एक तरफ he puts our afflictions, his afflictions, हमारी सबकी कठिनाइयां रखता है, and he puts a glory on the other side. और दूसरी तरफ वो महिमा रखता है तराजू के दूसरे तरफ, He receives a glimpse of this glory. क्योंकि उसे ये महिमा के बारे में पता चला है। Can anyone tell me what is this glory? और ये महिमा क्या है, किसको ये That he बता सकता received. है? जो उसे प्राप्त हुआ, He was caught up on the in the third heavens. उसको तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। So when लेकिन जब he weighed his afflictions to this glimpse of glory, जब उसने अपनी कठिनाइयां जो है इस महिमा के सामने तराजू पर तोली, it was light. वो बहुत हल्की सी, It was nothing. वो कुछ नहीं जैसा So था। much so that he started singing in the prison. इतना कि वो बंदीगृह में गीत गाता था। Then what is your affliction and my affliction? तो उस चीजों के सामने आपकी और हमारी कठिनाइयां क्या है? It is nothing. वह कुछ नहीं है। Because, okay, so Paul had this glimpse of glory. So pertaining to us, what is this glimpse of glory? ये जो पौलुस ने जो देखा महिमा, वो क्या है हमारे लिए? वो चीज क्या है? A Christian एक मसीह has been justified by faith, उसकी जो न्याय किया गया उसका जो है उसके विश्वास के द्वारा किया गया है, and he has found peace with God. और उसने अभी प्रभु के साथ शांति पाई है, He stands in the person of the Lord Jesus Christ, और वो यीशु मसीह के साथ खड़ा रहता है, and he rejoices और वो आनंद मनाता in है this glimpse of glory. ये जो महिमा है उसमें। Now these talks ये जो बातें हैं, will never appeal the ungodly. जो खुदा में नहीं मानते हैं उनको ये नहीं I'm telling you, भाएगी। they will walk out from this room वो इस रूम में से निकल कर चले जाएंगे बाहर doing the same things. उसी समय। But if your conscience troubles you today, लेकिन अगर आपके जो मन के विचार है वो आपको ऐसे परेशान कर रहे हैं, it is for you to meditate. तो आपने मनन करना बहुत जरूरी है। Okay? So we see that in order to understand whether a person's faith is genuine or not, we need to see all the three aspects, not just one aspect. जब हमने किसी के जो विश्वास है वो जांचना है तो हमने सारी तीनों बातों को ध्यान रखना You चाहिए। need the right belief of the Christian doctrines. उससे जो है वो मसीह के जो वचन है उसके ऊपर उसका विश्वास कैसा है वो जांचना है। Your character and your conduct, आपका चरित्र, आपके रोजमर्रा का जीवन, and whether you are truly born again या आपका फिर से जन्म नहीं हुआ है या नहीं, is understood ये आपने समझा है। in afflictions. ये सारी चीजों की समझ हमें कब मिलती है? जब हम पे ऊपर कठिनाइयाँ आती है। This is the secret of the Christian faith. ये जो है मसीहत का जो सीक्रेट है। Afflictions were there in the first century. तो कठिनाइयाँ जो है वो पहले की कलीसिया में भी थे, पहले शताब्दी में, Every century, हर एक शताब्दी में, and it will also be there for us और हमारे लिए भी रहेंगे until we are perfectly changed जब तक हम पूर्ण तरीके से बदल ना जाए into the image of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के चरित्र में। Okay? So when we are driven to despair and when we are taken to task for our faith, जब विश्वास के लिए हमारे ऊपर कठिनाई और ताड़नाएं आती है, don't be in despair. आप ऐसे दुख मत करो, Rejoice खुश रहो, आनंद मनाओ, and speak like Paul, पौलुस की तरह बातें करो, because क्योंकि our afflictions are light. हमारी मुसीबतें जो है वो हल्की सी है। Okay? So I close with these things. I'll end with a prayer. हम प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Lord, I give you all the glory, Lord. सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। Lord, you are a God who lives, Lord. प्रभु आप एक ऐसे जीवित परमेश्वर हो, You are Daniel's God, Lord. आप दानियल के खुदा हो। You call your people beloved, Lord. आपने अपने लोगों को प्रिय कहकर बुलाया है। Even before the prayers are offered to you, O Lord. जब प्रार्थना करने से पहले भी You know, O Lord. आप जानते हो। O Lord,
प्रभु I pray for your people, Lord. हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते They हैं will stand, O Lord, ताकि वो ऐसे खड़े रहे in the midst of afflictions, Lord. सारी कठिनाइयों के बीच में, And Lord, और people will see, O Lord, और लोग देखेंगे who is it that stands with them? और उनके साथ कौन खड़ा रहता है ये Who भी is वो it that stands देखेंगे, with them? कौन खड़ा है वो भी देखेंगे। This affliction burns them not. ये जो कठिनाई है उनका नाश न करे। Lord, bless your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को आशीषित करो। We need more people like Paul, O Lord, हमें पौलुस जैसे और लोग चाहिए कलीसियाओं who will not में, run away from affliction, my जो God. कठिनाइयों के कारण दूर नहीं भागेंगे। I make this prayer हम ये प्रार्थना in the name of the Lord and Savior. यीशु मसीह के नाम में करते हैं। Amen. आमीन।